Hello students, today this is practice lecture of voice conversion series. You will have 15 sentences in this lecture and 10-second pause on every sentence. Solve these sentences and match your answers with the correct answer. At the end of the lecture, put the number of right answers in comment box. So let's start the lecture, and here it is the first question. May I see this book? Convert this sentence into passive voice. You have 10 seconds. And the right answer is, may this book be seen by me. Here you will put question mark at the end of the sentence because it is question in the active voice, and the question in active voice will remain question in the passive voice also. Now the second sentence is Rama killed Ravana. Change into passive voice. Answer is Ravan was killed by Rama. Killed was the second form of verb, so we used was here because it was past indefinite tense. Next sentence is, may I eat this bread? This is also a question sentence, and change it into passive voice. Answer for this sentence will be, may this bread be eaten by me. Same आप यहाँ पर question mark का use करेंगे at the end of sentence. Next sentence, we made these paintings 4 years ago. Subject here is we and the object is painting. Now convert this sentence into passive voice. And the conversion of this sentence into passive voice is, these paintings were made by us 4 years ago. Here we use were because it is past tense, and in past tense the object here is plural, and for plural we use were helping verb. Now let's move to the next sentence. Sentence number 5. Don't laugh at others. See, this sentence is a command. ये sentence एक command है, and command वाले sentences को आप किस तरह से करेंगे? You are requested, या फिर जो भी command यहाँ दी गई है उसके according आप इसे solve कर सकते हैं. Answer for this sentence is, you are advised. यहाँ देखिए, don't laugh at others, यानी कि दूसरों पर मत हंसो. ठीक है, ये क्या है? एक एडवाइज है. तो इसके लिए हमने यूज़ किया you are advised. जैसा कि यहाँ don't था यानी नेगेटिव सेंटेंस था, so we use not in the passive voice, and then to will be added after not. You are advised not to laugh at others. Don't will be omitted in the passive voice because we have used not in place of don't. Next sentence is, Kalidas wrote Abhigyan Shakuntalam. Wrote यानी कि second form of verb. Now convert this sentence into passive voice. Passive conversion में अभिज्ञान शाकुंतलम, दैट इज द नेम ऑफ अ बुक, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में. ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे. रोट सेकंड फॉर्म थी, और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने वाज या वर यूज करनी है, और अभिज्ञान शाकुंतलम एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने वॉज का यूज किया. अभिज्ञान शाकुंतलम वाज
पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, रिटन बाय कालिदास। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंड फॉर द डॉक्टर। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। Hence this sentence is also a command. And now convert this sentence into passive voice. See the answer. Send for the doctor. Send for the doctor ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखिए रिक्वेस्ट की जा सकती है कि डॉक्टर को बुला लिया जाए, तो यू आर रिक्वेस्टेड, कंबाइन इट विद टू। नेक्स्ट आप लिखेंगे सेंड फॉर दी डॉक्टर। उसके बाद एक तरीके से और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज विद दी स्टार्ट इट विद दी लेट। लेट से स्टार्ट करके आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, लेट द डॉक्टर, और जब हम लेट का यूज करते हैं तो बी लगाते हैं, लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस इज काइंडली टेल मी द राइट वे। काइंडली मतलब कृपा करके, हेंस इट इज अ रिक्वेस्ट, और जब आपके पास रिक्वेस्ट है तो आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। नाउ कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एंड द आंसर विल बी यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी द वे, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, हु अब्यूज्ड मी, यू, हु अब्यूज्ड यू। यहाँ पर ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यू हैव 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस सेंटेंस। एंड द पैसिव वॉइस विल बी एज, हु को हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में, बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। अब्यूज्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अब्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, do it now. Convert it in passive voice. See the answer will be you are ordered to do it now. Sentence था हमारे पास do it now, इसे अभी करो, that means ये एक order है, और जब order है तो हमने क्या लिखा, you are ordered। टू से कंबाइन किया और फिर सेम रहेगा सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज आर फ्लाइंग द काइट। दिस इज एक्टिव फॉर्म एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन पैसिव फॉर्म। एंड द आंसर इज द काइट। काइट ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में हम काइट को यूज करेंगे। अब काइट ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, तो काइट इज, और फ्लाइंग था क्वेश्चन में, फ्लाइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो हम बीइंग का यूज करते हैं, द काइट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म बन जाएगी फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन बाय बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस इज 12th सेंटेंस, आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ या जानता हूँ। कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस। आंसर इज, हर को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या बन जाएगा, शी। नो यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, और जब हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। शी इज, नो की थर्ड फॉर्म बन जाएगी नॉन, टू मी, यहाँ बाय का यूज ना करके टू का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, नो, और नो के साथ बाय का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इंकपॉट डज नॉट कंटेन इंक, इस इंकपॉट में इंक नहीं है। कन्वर्ट इट इन पैसिव वॉइस, यू हैव 10 सेकेंड्स। And the answer is, ink is not contained in this ink pot. Contained के बाद हम by ना लगाकर क्या लगाते हैं, in लगा देते हैं, right? Next sentence, sentence number 14. Why did the peon ring the bell? This is an interrogative sentence, and now you have to convert this in passive voice.
say the answer. Did is the past tense and past tense को आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करने के लिए was या were का यूज़ करेंगे. अब why था तो why से ही स्टार्ट होगा. why, बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसके लिए वाज लगाएंगे. वाई वाज दी बेल, रिंग की थर्ड फॉर्म बन जाएगी रंग, बाय दी पियर. नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड दी मदर बाय टॉयज फॉर दी चाइल्ड. क्या मदर ने चाइल्ड के लिए टॉयज खरीदे. दिस इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड यू हैव अगेन 15 सेकेंड 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. And the answer is, were the toys bought by the mother for the child. For the child was additional information and we have put it into the at the end of the sentence. And were क्यों यूज़ किया गया यहाँ पर, because object the toys plural है और plural के साथ हम past tense में were helping verb का यूज़ करते हैं and what is the third form of verb. तो इस तरह से आपके ये 15 sentences complete हो जाते हैं. और जो एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन का टॉपिक था वो भी आज कंप्लीट हो जाता है. आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा. और अपना जो स्कोर है, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं.